Recording is starting. Good morning, Good morning, sir. everyone. So, again, I will teach you networking concept. But the surprisingly part, whatever I have saved is deleted. So I'm connecting my mobile and checking that I did. Okay. So here, first and foremost, I'm sharing a screen to you. Okay. I will share a screen for you so that you will be able to see whatever I am displaying it here. The screen is shared, and you see here. Just say that it's visible or not. The revised labels. Yes, sir, it's visible. Okay, so we'll come to the 12th. Later on, we'll see 11th also for you. So syllabus is changed because of this pandemic. Computer science class 1203 code. We'll come to the data that is the computer network part. Now the first and foremost part is evolution of network, and we'll go for this definitions only. Unnecessarily बहुत सारी चीजें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है. So we'll go one by one the definition, and I will try to give you either from the net or from the book itself. Okay. So the syllabus says you should learn ARPANET, internet space, different ways of sending and data across the network with reference to switching techniques, circuit packet, and so on. Okay. So we'll start with the point wise so that आपको समझ में आए कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ. और I will scan that page only at that moment and I will show you. So we'll start with ARPANET. So you know any of you what is the full form of ARPANET? So I will take from here only. Easy to teach. ARPANET. So we'll start with this. ARPANET, Advanced Research Project Agency Network. मैं काम करता हूँ इन सारी चीज़ों को वर्ड में कॉपी कर लेता हूँ so that आपके लिए भी आसानी रहे. मैं सेव करूँ. Control V. Advanced Research Project Network. ठीक है. Advanced Research Project Network. Advanced Research Project Agency Network. फालतू की चीजें तो बहुत आएंगी. ARPANET in full advanced research project agency to experience computer network that was the forerunner of the internet. मतलब जो starting हुई थी network की that was started with ARPANET. Okay. ARPANET definition history देख लीजिए थोड़ा सा. Advanced and arm of the US. Actually क्या हुआ था कि आर्मी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय US डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन ने एक नेटवर्क इंट्रोड्यूस किया था and that was ARPANET. Okay. मैं चाहता हूँ ये डेफिनेशन भी इसमें 10 बार an arm of the defense department founded the development of projects agency late in 1960s the initiative was to link computer at Pentagon for research lines. बस इतना कर लो. ये डेफिनेशन काफी है. So I will give this definition. अगर आप चाहो तो इसको पूरा कर लो. That's it. Advanced Research Project Agency Network की definition इतनी काफी है. ठीक है. Yes, sir. मैं आपके लिए एक एक पॉइंट लेके चलूंगा. बुक से करेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम भी चाहिए और अननेसेसरी चीज़ें हैं. जो सिलेबस पॉइंट्स है वो पढ़ेंगे सिर्फ. ओके. सो विल कम टू द नेक्स्ट सिलेबस पॉइंट. पीडीएफ कहाँ गई? बंद कर दी थी क्या? इसको ओपन ही रखना है. लो भाई. Okay. The second point here is internet definition. You all know. फिर भी मैं आपके लिए इंटरनेट की डेफिनेशन दे देता हूँ. Most of the things अपने पास जो फैसिलिटी है तो यूज करो ना. इंटरनेट काय को मैं दिमाग ज़्यादा करूँ.
definition and better definition होती है. Internet is the global system of integrated computer network that uses, बस इतना काफी है इंटरनेट के लिए. Networks and devices. Control C. Wiki आप चाहो तो देख सकते हो, नहीं तो जरूरत नहीं है. Control V. That's the definition of internet. The internet is a global system of integrated networks that uses the internet protocol TCP/IP to communicate. इसके बारे में डिटेल बाद में पढ़ाऊंगा. Between networks and devices जब protocols आएंगे. Okay? आपके पास एक ही में मैं सारी चीजें कर रहा हूँ. बुक भी नहीं यूज कर रहा हूँ, बार बार स्कैन कौन करेगा. यहाँ सिलेबस देखूंगा और उसके हिसाब से आपको पढ़ाऊंगा. ओके, अब समझा देंगे जहाँ पे चीजों में आपको डिफिकल्टी आएगी. सो नेक्स्ट पॉइंट हियर इज पाइथन को तो बंद ही कर दे. द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज ये सिलेबस का छूट गया. सर वो नीचे माइक्रोसॉफ्ट वाला है, उसमें खुला हुआ है पहले से ही. हाँ सर, इसमें देखो 2 टैब हैं. कहाँ पे दिख रहा था? यहीं पे दिख रहा था डेस्कटॉप टूलबार. कोई बात नहीं. इंटरनेट. नेक्स्ट इज इंटर स्पेस. इंटर स्पेस ये एक डेफिनेशन है, डिफरेंट ये अलग है, कॉमा मिसिंग है. इंटर स्पेस. इंटर स्पेस क्या है कि आपका ग्राफिकल सॉफ्टवेयर होता है जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं. आपकी डेफिनेशन में बता देता हूँ. Interspace. Wiki interspace. Wiki. Okay. डिक्शनरी भी आती है, कोई बात नहीं. विकिपीडिया का है. सर वो इंटरस्पेस विद रिस्पेक्ट टू कंप्यूटर मतलब ऐसा कुछ डाल के देखिए, शायद इस वजह से नहीं आ रहा. Interspace is software that allows multiple users in a client-server environment to communicate with each other to send and receive data of various types, such as data files, video, audio, and textual data. ये मैंने बताया था कि एक सॉफ्टवेयर है. Interspace gives the most exceptional types of communication available in the internet today. ये आपके लिए काफी है. यहीं से भी सही से कॉपी वर्ड पेस्ट. सर इसमें मतलब ऐसे एक्सेप्शनल क्या है, मतलब जैसे उसमें लिख रहा है मोस्ट एक्सेप्शनल टाइप फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन. जितने भी आप चैटिंग वेटिंग यूज करते हो या जितने भी आपके आप व्हाट्सएप के लो या कोई भी जो नए नए सॉफ्टवेयर आते हैं वो इंटरनेट टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर पे डिपेंड होते हैं. Software that allows multiple in the client-server environment to communicate with us to send and receive data of various types, such as data files, video, audio, textual data. Interspace gives the most exceptional type of form of communication available on the internet today. तो हम जहाँ पर भी exchange information करते हैं, वहाँ पर चाहे किसी भी तरह का हो, उसमें इंटरस्पेस सॉफ्टवेयर ही यूज होता है या उसका नाम इंटरस्पेस होता है. बेसिक जो है, मैं अगर आपसे चैटिंग कर रहा हूँ, टेक्सचुअल चैटिंग कर रहा हूँ या अभी जैसे इसी का एग्जांपल ले लो ना, 3D एनवायरनमेंट में बात करना चाहता हूँ आपके, तो ये सारी चीजें किससे हो रही है? इंटरस्पेस सॉफ्टवेयर से हो रही है. ओके. यस सर, यस सर. मैं एक बार बता दूं, आपके डिटेल नहीं है, ये किसी भी चीज की डिटेल नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन है. अब यहाँ पे आ जाओ, इसको मैं समझा दूंगा. डिफरेंट वेज ऑफ सेंडिंग डेटा अक्रॉस द नेटवर्क विद रेफरेंस टू द स्विचिंग टेक्निक, सर्किट एंड पैकेट स्विचिंग. तो इसमें 3 चीज़ें होती हैं, 3 तरह की स्विचिंग टेक्निक होती है बेटा. वन इज योर सर्किट स्विचिंग, सेकेंड इज योर मैसेज स्विचिंग एंड थर्ड इज पैकेट स्विचिंग. मैसेज स्विचिंग का यूज़ नहीं है, इसलिए इन्होंने मैसेज स्विचिंग सिलेबस से हटा दिया है. तो अब सर्किट स्विचिंग क्या होती है? ये वन वे मतलब ये कम्युनिकेशन वन वे कम्युनिकेशन होती है, 2 वे कम्युनिकेशन होती है, बट उसमें कम्युनिकेशन तभी कंप्लीट होती है जब
दोनों साइड से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाती है, सच एज टेलीफोन लाइन। जो बेस टेलीफोन लाइन की कम्युनिकेशन है उसमें हम इंटरेक्शन तभी कर पाते हैं जब आगे वाला फोन पिकअप करता है। अंडरस्टूड? तो ये जो टेक्नोलॉजी यूज हुई दैट इज नोन एज सर्किट स्विचिंग, जब फिजिकली कनेक्ट होना दोनों तरफ से जरूरी है। सेकेंड आता है पैकेट स्विचिंग, जो बाद में मैसेज स्विचिंग और बाद में जो कन्वर्ट हुआ पैकेट स्विचिंग में। मैसेज स्विचिंग में हम एक मैसेज भेजते हैं फ्रॉम वन स्विचिंग ऑफिस, यू कैन से स्विचिंग ऑफिस फ्रॉम वन सर्वर टू अनदर सर्वर एंड टू द क्लाइंट, ऐसे करके आगे। जैसे हमारे पास आप गूगल का कुछ भी यूज करते हो तो गूगल का सर्वर यूएस में है, उसका सब सर्वर हो सकता है कहीं और पर है, तो डेटा एक सर्वर से दूसरे सर्वर में ट्रांसफर होता हुआ तब हमारे पास आता है। सो मैसेज स्विचिंग में जो आपका मैसेज था उसकी कोई साइज लिमिट नहीं थी, तो ये बहुत बड़ा ट्रैफिक में प्रॉब्लम आता था। अब पैकेट स्विचिंग में ऐसा था कि साइज लिमिट है, उससे बड़ा साइज नहीं जाएगा। तो जब हम किसी भी मैसेज को सपोज 1 MB मैसेज को 512 किलोबाइट्स में डिवाइड कर देंगे और 512 किलोबाइट्स से डेटा जाएगा तो हमारा नेटवर्क ट्रैफिक में भेजने में आसानी होगी। जैसे कि एग्जांपल लो, सपोज एक चौराहे पे बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं तो क्या होता है, ट्रैफिक जैम हो सकता है, मगर वही छोटी छोटी गाड़ियां तो ईजिली वो सारी गाड़ियां निकल जाएंगी। तो इसी तरह जब इंटरनेशनल या इंटर कॉन्टिनेंटल ट्रैफिक को हम हैंडल करते हैं तो उसके लिए हम पैकेट स्विचिंग का यूज करते हैं। मैसेज को स्मॉलर चंक्स या स्मॉलर पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एंड देन वी सेंड द डेटा टू अक्रॉस द डिफरेंट सर्वर्स और अक्रॉस द डिफरेंट स्विचिंग ऑफिस। तो ये मैंने कहानी बता दी। अब बुक पे क्या है और नेट पे क्या है वो अलग डेफिनेशन हो सकता है, थोड़ा बहुत हो, मगर बात समझ में आपको आ गई। डेटा को कैसे भेजा जाए उसकी 3 अलग अलग टेक्निक्स हैं। वन इज योर सर्किट स्विचिंग जो टेलीफोन बेस वाली है, सेकेंड वन इज योर पैकेट स्विचिंग जिसमें साइज लिमिट नहीं है, थर्ड मैसेज स्विचिंग एंड थर्ड इज योर पैकेट। मैसेज स्विचिंग में ये क्या होता है कि हार्ड डिस्क टू हार्ड डिस्क डेटा ट्रांसफर करता है, जबकि पैकेट स्विचिंग में रैम टू रैम, अगर आप कंप्यूटर पे ऑन है, रैम ऑन है तो आपका रैम टू रैम ट्रांसफर हो गया। जैसे मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ तो ये आपका पैकेट स्विचिंग के थ्रू चल रहा है, डायरेक्टली रैम टू रैम आपके पास, ये नहीं हो रहा कहीं पे स्टोर और फिर फॉरवर्ड। जैसे मेल वगैरह आता है तो वो स्टोर भी होता है फॉरवर्ड होता है, मगर वो सब अब जितनी भी टेक्नोलॉजी यूज हो रही है सब में पैकेट स्विचिंग ही यूज हो रहा है। तो मैं इसको डेफिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा दूँ, थोड़ा बहुत चेंज भी हो सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेक्निकल जाते हैं। मैंने एक जनरल डेफिनेशन बताई। In large network, there may be more than one path for transferring data from sender to receiver. Selecting path data must take called the switching. There are two popular switching things: circuit switching and packet switching. मैसेज switching को हटा ही दिया है तो आप भी उस पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मतलब बेसिकली 3 टाइप की है। कंट्रोल सी, मैंने तो 3 ही पढ़ा था इसलिए मैंने 3 ही बोला। ये आओ कंट्रोल बी, ये मैंने आपको स्विचिंग की डेफिनेशन दी थी यहाँ पे। इन लार्ज नेटवर्क देयर मे बी मोर देन वन पाथ फॉर ट्रांसफर डेटा फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर। सेलेक्टिंग पाथ द डेटा मस्ट टेक आउट ऑफ द अवेलेबल ऑप्शन कॉल्ड स्विचिंग। देयर आर 2 पॉपुलर स्विचिंग टेक्निक्स: सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। अब देखो ये कुछ अलग में बताएं ट्यूटोरियल पॉइंट्स में क्या लिखा है। सर्किट स्विचिंग, when a dedicated path is established for data transfer between senders, it is called circuit switching. When a network node wants to send data, be it audio, video, or any other type of call request signal sent to the receiver and acknowledge back to ensure availability of the dedicated path. इस टाइप के नेटवर्क को हम सर्किट स्विचिंग कहते हैं, जैसा कि मैंने टेलीफोन वाला एग्जांपल दिया था। बस अच्छी डेफिनेशन है, लिख लो। ठीक है, अब पूरा हम टेक्निकल नहीं जाएंगे कि कैसे हो रहा है और क्या हो रहा है, पूरी फिजिक्स नहीं पढ़ानी है मुझे। सो इतना काफ़ी है। दैट इज योर सर्किट स्विचिंग। नेक्स्ट पैकेट स्विचिंग पे आते हैं। नेक्स्ट इज योर स्विचिंग टेक्निक पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग के बारे में बताया, पैकेट switching, then next is packet switching. The major problem with circuit switching is that it needs a dedicated line. Okay, in packet switching data is broken into small packets with each packet having source and destination IP address बोलते हैं इसे, traveling from one route to another router. That's it. From one communication place to another place or one server to another.
आप इसको चेंज भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कंट्रोल भी। तो आपके ये दोनों हो गए जो एज पर सिलेबस थे। डेडिकेटेड लाइन फॉर ट्रांसमिशन इन पैकेट्स विल बी डेटा ब्रोकन इनटू स्मॉल पैकेट्स। आप देखिए कोई भी आप ध्यान से अगर कुछ चीज़ों को समझे तो आपको बात समझ में आएगी। जैसे मान लीजिए कि आप वीडियो ऑडियो कुछ भी लोड करते हैं तो क्या देखते हैं, कुछ बाइट्स पहले आती हैं 32, 44, 64 एंड सो ऑन डिपेंडिंग ऑन द स्पीड अवेलेबल। कभी कभी आप फोटोज सेंड करते हैं तो देखते हैं पहले हेड आता है फिर बॉडी पार्ट आता है लेग आता है, फिर ऐसे ऐसे करके लोड हो रहा है, तो वो उतने उतने पैकेट्स आ रहे हैं। अच्छा ये याद रखना कि टीसीपी आईपी का भी मैं पढ़ाने वाला हूँ, तो जिस ऑर्डर में वहां से भेजा गया है उसी ऑर्डर में स्टोर होगा, इसीलिए कोई कंफ्यूजन नहीं होता कि सॉन्ग उल्टा पुल्टा हो जाता है या फोटो गड़बड़ हो जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, दो इट इज कमिंग इन पार्ट्स। गॉट इट? यस सर। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये बता दूं ये 7-8 क्लासेस आपको बहुत ध्यान से और बहुत समझ के करना है, क्योंकि इसमें मुझे पढ़ाने के लिए एज सच मुझे अपना कोई दिमाग नहीं लगाना है, डेफिनेशन सेंस है, ठीक है? तो मैं जहाँ तक होगा डेफिनेशन कराऊंगा आपको। ओके, बंद कर दिए क्या बहुत सारे? ओके, नेक्स्ट विल कम okay, next definition will come to the कौन सा बेटा? डेटा कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कॉन्सेप्ट ऑफ चैनल, बैंडविड्थ एंड। आपको फिजिक्स मुझसे ज़्यादा पढ़ रहा है बेटा, आपको ज़्यादा मुझसे बताओगे, फिर भी ये चीज़ें मैं लूँगा। चैनल क्या है थोड़ा बुक से ले लेते हैं, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट, थोड़ा बुक भी तो लेते हैं होने देते हैं। ये सारी चीज़ें इसमें शॉर्ट में दी हुई हैं उसी से, जस्ट इतनी सारी डेफिनेशन से तो ढूंढना पड़ेगा। नेट में ये फैसिलिटी है कि फटाफट वहाँ पर टाइप करो और यू गेट द आंसर। छोड़ो अब मैं ढूंढूंगा। सो सबसे पहले आते हैं चैनल। चैनल ये चैनल इन, ये अपना वो नहीं है ना, क्रोम नहीं, चैनल channel in networking. A communication channel refers to either to a physical transmission medium such as wire or to a logical connection over a, आप waves भी कह सकते हैं और wire भी कह सकते हैं, ठीक है? That is known as channel. Channel could be a wire, could be a wireless. तो आप इसको चैनल की डेफिनेशन लीजिए। जो आपका गाइडेड मीडियम होता है वो वायर्ड होता है और अनगाइडेड मीडियम वेव्स होता है, ये आपको शायद पता ही होगा। कम्युनिकेशन चैनल रेफर्स टू द फिजिकल ट्रांसफर सच एज अ वायर और अ लॉजिकल कनेक्शन ओवर अ मल्टीपल मीडियम सच एज रेडियो चैनल। आपको ये तो पता ही होगा ना बेटा कि चाहे माइक्रोवेव हो या सैटेलाइट वेव हो, ये सब के सब रेडियो वेव ही बेसिकली होते हैं। जैसे Yes, जैसे sir. इनके हर्ट्ज बढ़ते जाते हैं उस हिसाब से इनका नाम बदलता जाता है। सचिन, आई एम राइट और रॉन्ग? Yes, sir. You are absolutely right. और Infrared से ultraviolet. जैसे इनके हर्ट्ज बढ़ेंगे, मतलब 640 किलो हर्ट्ज और पता नहीं क्या बोलते हैं, याद नहीं है मुझे, तो उसी हिसाब से इनको माइक्रोवेव या उससे ज़्यादा होगा तो फिर सैटेलाइट वेव्स कहेंगे, बट बेसिकली दे ऑल आर रेडियो वेव्स। ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट हियर। पहले चैनल हो गया, फिर ये इन्होंने जो टर्मिनोलॉजी ली है डिवाइस, इसमें इन्होंने एक्सटेंड हर्ट्ज, 1 साइकिल पर सेकंड इज नोन एज हर्ट्ज, यही है ना डेफिनेशन? Yes, sir. Frequency की unit. Yes, sir.
लिख लो भैया मेरे को भी थोड़ी बहुत याद है फिजिक्स। हर्ट्ज 1 साइकिल पर सेकेंड, 1000 साइकिल हो जाएगा किलो हर्ट्ज एंड 1000 किलो हर्ट्ज हो जाएगा मेगा हर्ट्ज। प्लीज नोट इट डाउन। बैंडविड्थ क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डेटा ट्रांसफरेबल, मतलब कि अपन एक बार में कितना एग्जैक्टली मैक्सिमम। हर्ट्ज आ गया सबको, हर्ट्ज किलो हर्ट्ज मेगा हर्ट्ज। बैंडविड्थ अवेलेबल चैनल ऑफ विड्थ, या इस तरह से आप कह सकते हैं बैंडविड्थ जिस पे वो चल रहा है। बैंडविड्थ इन नेटवर्क। Bandwidth is the amount of data that can be transferred from one point to another within a network in a specific amount of time. It is measured bits per second. BPS बोलते हैं। अब मैं इसको भी थोड़ा सा समझा दूं। बैंडविड्थ BPS बिट्स पर सेकेंड। इसको सेव भी करने काम आएगा मेरे लिए, आइंदा के लिए मेरे लिए नोट्स कंप्लीट हो गया। अब मैं किसी को प्रिंट आउट दे सकता हूँ। Bandwidth is the amount of data that can be transferred from one point to another within a network in a specific amount of time. It is measured in bits. अब इसमें बेटा ये BPS अगर छोटे में है, B से छोटा है, that means bits है। BPS, अरे यार, BPS बिट्स पर, इसमें मैं वीक हूँ, बिट्स पर सेकेंड। और वहीं पर अगर ये BPS है या एक भी कैपिटल है तो ये हो जाता है बाइट्स, ये होगा बिट्स। अब बाइट्स से फर्क तो पता होगा ना भाई, बिट्स इज 01, बाइट्स इज 8 बिट्स मेक्स अ बाइट। सो जब Yes, sir. कैपिटल में दिया हो तो उसे बाइट्स कंसीडर करना, और जब स्मॉल में हो तो उसे बिट्स कंसीडर करना। ओके ओके, सो यहाँ तक आ गया डेटा ट्रांसफर। देखो यहाँ BPS दिया है, KBPS किलो बाइट्स, मेगा बाइट्स, GBPS टेराबाइट्स एंड सो ऑन। ठीक है, स्मॉल में बिट्स, कैपिटल में बाइट। ट्रांसमिशन मीडिया टाइम है थोड़ा सा चलो। अब मैं नेक्स्ट ले रहा हूँ ट्रांसमिशन मीडिया। इसके बारे में आपको समझा दूँ। ट्विस्टेड पेयर केबल, आपके ये जो टेलीफोन केबल होती है काली वाली आपने जो देखी होगी, वो ट्विस्टेड पेयर केबल है जो आपके घरों में नॉर्मली अवेलेबल होती है टेलीफोन केबल, दैट इज ट्विस्टेड पेयर। उसमें दो वायर ट्विस्टेड होते हैं अक्रॉस, इस तरह से ट्विस्ट होते हैं। अभी मैं आपको एक काम करता हूँ, ये मेरे पास नेट है तो मैं सब कुछ आपको यहाँ दिखा के कहूँगा। गूगल देखो, आपको मजा आएगा। यहाँ पे आपको ट्विस्टेड पेयर केबल दिखेगी, ट्विस्टेड पेयर केबल। अच्छा कोई मुझे बताओ फिजिक्स वाले, ये केबल को ट्विस्ट क्यों करते हैं, कोई रीजन? सर एक्चुअली वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ करंट मतलब ऐसे पास करना होता है, बट अगर अपन एक ही बड़ा वायर ले लेंगे हाँ। तो उससे मतलब उसके वायर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगी, मतलब वो उसके सरफेस के थ्रू पास करती है। तो जो अपन दो वायर लेते हैं तो उससे अच्छा, मैं सरफेस एरिया बढ़ आपसे जाता है। ये बात पूछता हूँ, देखो मैं साइंस स्टूडेंट था, थोड़ा बहुत तो फिजिक्स आती है, तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अगर वायर लेंथ सीधा है उस पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा या वायर ट्विस्टेड उस पे रेजिस्टेंस ज्यादा होगा? कम ऑन सर वो एक्चुअली मतलब एक तो ऐसे रीजन होता है, मतलब रेजिस्टेंस का ऐसा मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी हम रेजिस्टेंस किसमें मतलब ज्यादा होगा? सर मतलब रेजिस्टेंस एक्चुअली हमारे अभी करंट उन्होंने एग्जैक्टली स्टार्ट नहीं किया है, मतलब मैंने क्लास नहीं करी करंट वाली फ्रैंकली, तो इसलिए मुझे ज्यादा आइडिया नहीं। बट ट्विस्टेड वो इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जो आउटसाइड जो मैग्नेटिक फील्ड हो उसका इंटरफेरेंस ना हो, मतलब एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि रेजिस्टेंस सीधे वायर पे ज्यादा होगा, ट्विस्ट हो जाएगा तो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा बेटा। अब क्या होगा कि जो आउटर इंटरफेरेंस है, जहाँ तक मेरे को फिजिक्स बता, देखो हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ क्योंकि मुझे बहुत दिन से मैंने पढ़ा नहीं है फिजिक्स, फिर भी मैं जितना बता रहा हूँ कि इसे आपने बिल्कुल सही बोला है कि आउटर इंटरफेरेंस नहीं होगा जब हम इसको ट्विस्ट कर देंगे, या ऐसे हम कहते हैं कि सिग्नल जो है या आउटर इंटरफेरेंस या क्रॉस टॉक से बच जाएंगे, क्रॉस टॉक से बोलते हैं, क्रॉस टॉक से बच जाएंगे।
तो मैग्नेटिक इफेक्ट है या इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है उससे बच जाएंगे, दैट्स व्हाई द केबल्स आर ट्विस्टेड। ओके, अब ट्विस्टेड केबल ले लेते हैं, इसका इमेज भी ले लेते हैं। और सर इसमें मतलब लॉस भी कम होता है, मतलब ओवरऑल हीट और उसकी वजह से। एग्जैक्टली, कोएक्सियल केबल वर्सेस ऑप्टिकल फाइबर ट्विस्टेड पेयर केबल इमेज एक्चुअली गेट ट्विस्टेड ट्विस्टेड दिखाओ, क्लियर नहीं दिखा रहे हैं, ये आ गई ट्विस्टेड, ट्विस्टेड पेयर केबल, इस तरह से ट्विस्टेड पेयर केबल होती है, ठीक है, ये ट्विस्टेड पेयर केबल। अच्छा एक बार बताओ, किसी ने कोएक्सियल केबल देखा है? मैं हमेशा कहता हूँ चीजों को देखा करो, दुनिया में जो चीजें सामने दिखे उसको देखा करो, पूछा करो क्या है ये। कोएक्सियल केबल सबने हाँ देखा? सर देखा, वो पहले पुराने वाले टीवी में आता था शायद, मतलब। अरे सब अभी हमारे स्कूल में भी लगी हुई है, मैं दिखाती हूँ ऐसा। ये है कोएक्सियल केबल, यहाँ पे जो टीवी में लगी रहती है ना आपके, जिसमें एक सॉलिड कॉपर वायर होता है, उसके साथ मेश वायर और कॉपर सिल्वर कॉइल होता है, देखा यस है? सर। दैट इज यस नोन सर, ऐसा एज, वाईफाई वगैरह में भी शायद वही यूज दैट होता है इज नोन कनेक्ट एज करने के लिए। दैट इज नोन एज कोएक्सियल केबल। कोएक्सियल केबल। थर्ड वाली जो केबल आपकी होगी दैट इज ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल इससे तो फाइबर पूरा ऐसे इंटरनेट वगैरह फिर मतलब। इंटरनल रिफ्लेक्शन पे वर्क करता है, वो मैं अभी आपको डेफिनेशन लिखवा देता हूँ। तो ये ट्विस्टेड केबल समझ में आ गई। अब मैं आपको कोएक्सियल केबल दिखा दूँ। कोएक्सियल कोएक्सियल केबल, ये है कोएक्सियल केबल। नाउ सी हियर, कोएक्सियल केबल में क्या होता है, ये कॉपर वायर होता है, और ये तो हमारे यहाँ जो टीवी कनेक्शन वाला आया था, मैंने पूछा भैया ये सिल्वर कॉइल किस लिए, कह रहा सर ये अर्थिंग के लिए है। तो उसने अपनी लैंग्वेज में ठीक बोला, एक्चुअली इट प्रोवाइड्स अ ग्राउंड, जो सिग्नल की क्लैरिटी है, इट प्रोवाइड्स अ ग्राउंड। कॉपर में शॉ और सिल्वर में शॉ वायर आता है यहाँ पर, और ये एक कॉपर सॉलिड वायर आता है दैट प्रोवाइड सिग्नल। ओके, अभी मैं डेफिनेशन अगली क्लास में करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है जी, कितना सा टाइम लगता है। थर्ड वाली जो मतलब वो आती है एंड वो होती है ऑप्टिकल एंड फाइबर। मैं दिखा दूं एक बार तीनों आपको, आपको समझ में तो आ रहा है ना? यस सर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है, ये ऑप्टिकल फाइबर है, ये कोर है, क्लैडिंग है, कोटिंग है, और ये बाहर के आउटर जैकेट्स वगैरह ये सब प्रोटेक्ट करने के लिए है, ये इंसुलेटर है ये सर, ये ताकि बहुत सेंसिटिव होता है और सेंसिटिव होती मतलब है, और फास्टेस्ट भी होती है। इट्स मेड ऑफ लाइक ग्लास लाइक मटेरियल, और टोटल थोड़े से मोड़ने पे ये ब्रेक हो जाती है, क्योंकि जो मटेरियल यस वो यस सर। ग्लास लाइक मटेरियल है, तो वो ब्रेक होता है, इसलिए हाँ कभी भी पूरा नहीं, बिल्कुल ऐसे जो नॉर्मल वायर को बेंड करते हैं वैसा नहीं कर सकते हैं। यस सर, वो एक्चुअली वाईफाई वगैरह में यही लगती है आजकल तो। वो देखा था मैंने, वो लगाते हैं जब, मतलब वो हेम्प जैसी होती है बट उसे आप ज्यादा मोड़ते हो तो वो अच्छा एक बार बताओ, बहुत। अभी चलो घर पे तो आपने ऑप्टिकल फाइबर देखा, कभी बाहर आपने ऑप्टिकल फाइबर देखा था? मैंने ये सवाल पूछा था, आप तो लोगों के घर पे आ गई ऑप्टिकल फाइबर तो देख लिया, मैंने भी जब मेरे यहाँ लगा रहा था तो मैंने थोड़ा उससे ले लिया, उसकी प्रैक्टिकली में समझाने के लिए। तो ऑप्टिकल फाइबर में आपने देखा होगा, जो आप कभी मेले वगैरह गए होंगे या आप जंगल गार्डन पे जाओ, वहाँ पे एक लैम्प बेचते हैं, आपने देखा होगा, वेस्ट ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स है वो क्या करते हैं, नीचे एक लाइट जला देते हैं और ऊपर बहुत सारी लाइट जल्दी भी दिखती है, वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे डिपेंड करता है। एक एलईडी लाइट नीचे लगाते हैं वो, और ऊपर क्या होता है, जितने भी जो उन्होंने थिन स्ट्रैंड्स लिए, थिन स्ट्रैंड्स, तो उस पर क्या होता है आपको लिखेगा, एक्चुअली तो होता है वेस्ट ऑप्टिकल फाइबर्स, तो उससे वो एक लैम्प है बना के, आपने देखा होगा फुटपाथ पे बेचते रहते हैं, देखा है आपने कभी, मार्क किया है कभी मेले में या कहीं नहीं, पर भी? ये मतलब ये तो नहीं पता था, बट मुझे ये जरूर पता था कि वो सर्जरी वगैरह में जरूर यूज होती है, उसको मतलब ये। इसमें आपने देखा होगा कि ऑप्टिकल फाइबर का वो किस तरह से, वेस्ट ऑप्टिकल फाइबर का कैसे वो लैम्प बना लेते हैं और उसको यूज करके बेचते हैं, आपने देखा होगा, ध्यान से देखा होगा, वो एक्चुअली वेस्ट ऑप्टिकल फाइबर। एनीवे, सो विल कम टू द पॉइंट नाउ, नेक्स्ट class I will give you the definition of this also, and we'll go strictly according to the syllabus. I will save this file for you, टाइम अप हो चुका है, सेव है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, यहां तक ले लिया, देन मैं यहां से दूसरा ले सकता हूं, टेक्स्ट कहां तक था, और नीचे
2 बार में आप ले लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। एंड प्लीज कंप्लीट द नोट्स। आप लिखने की आदत भी डाल लीजिएगा भाई, सिर्फ आप स्क्रीनशॉट से काम, एग्जाम में स्क्रीनशॉट नहीं चलेगा, वहाँ पे लिखना होगा। ओके, Yes, sir. विल मीट Yes, sir. नेक्स्ट क्लास। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बेटा, टेक केयर। Thank you, sir.